Good morning, everybody. I am Molshri, your host for today's live from All About Skin Allergy team. I'm sure all of you must be keeping in good health. Today, we are going to discuss our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some point in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itch intensely, which may be due to chemicals in certain foods, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause remains unknown. As per one study published in Indian Journal of Dermatology, Venerology and Leprosy, more than one-fifth of the population suffers from urticaria at some time. 60% of patients are in the age group of 20 to 30 years, and the incidence is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it and doing self medication, which can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its types, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Imran Khan, live from Dr. Imran Skin, Hair and Laser Clinic, Jaipur, who will educate us more about urticaria and its management. Dr. Imran Khan is a dermatologist and cosmetologist, and he has completed his MBBS from RNT Medical College, Udaipur, and MD from Jodhpur Medical College. Dr. Imran Khan, we welcome you to this live interaction. Thank you so much. Warm welcome to all my viewers. And today the topic is urticaria. Definitely. So, Doctor, as we begin, yes, जैसे कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं, हमारे पेशेंट से हम बातचीत करें, इसके सबसे पहले जानना जरूरी है what exactly is urticaria? अर्टिकेरिया जनरल पॉपुलेशन में अर्टिकेरिया नाम से लोग बहुत कम जानते हैं। ज्यादातर जैसे इंडियन पॉपुलेशन में दाफड़ या पित्ती या रेड बम्स, ये जो अलग अलग नामों से इंडिया में इसको जाना जाता है। तो पित्ती है, दाफड़ है, ये कॉमन टर्म है जो इंडिया में यूज करते हैं लोग। अर्टिकेरिया है तो अर्टिकेरिया एक स्किन एलर्जी है। अब वो स्किन एलर्जी है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। यूजुअली जो पेशेंट की जो कंप्लेन रहती है, पेशेंट जो हमारे पास आता है उसके स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग की साइज है वो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर्स में हो सकती है। रेड एलिवेटेड लीजन्स होते हैं, रेड रेड स्वेलिंग होती है। वो स्मॉल साइज भी हो सकती है, लार्ज साइज भी हो सकती है। विथ इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा उसमें इचिंग रहती है। और उसके साथ में कुछ लोगों में बर्निंग, माइल्ड फीवर, ये भी कंप्लेन हो सकती है। तो अर्टिकेरिया एक एलर्जी है जो कुछ फूड्स है, ड्रग्स है, जो दवाइयां हैं, दवाई लेने से हो सकती है। कुछ इन्फेक्शंस है, ऑटो इम्यून हो सकती है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है उसकी वजह से हो सकती है। तो ये जिस तरह का आपने बताया, इट इज एन एलर्जी एंड इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल कंडीशन टू हैव। अर्टिकेरिया के मेन कॉजेस क्या होते हैं जनरली? मेन कॉजेज इसमें अर्टिकेरिया यूजुअली दो तरह से होता है। दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। acute urticaria which is usually less than 6 week in duration, usually subside in 6 week, within 6 week, which is called acute urticaria. Acute urticaria usually just caused by infections की वजह से हो सकता है। दूसरा, कोई भी मेडिकेशन है, ड्रग्स हमने कोई दवाई ली है उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड, इसमें कुछ फूड जो मटेरियल है, फूड की वजह से फूड एलर्जी हो सकती है। कोई हम जो फूड है, कोई भी फूड, कुछ भी कोई भी फूड हो, वो वेजिटेबल्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, इवन इनहेलेशन हो सकता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये रहता है। क्रोनिक अर्टिकेरिया में
जो ड्यूरेशन है वो more than 6 weeks. If urticaria persists more than 6 weeks, then it is called chronic urticaria. More than 6 weeks. And अगर 6 weeks से ज्यादा रहता है ये पेशेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। और इसके लिए जो कॉमन कोज है वो यूजुअली या तो उसमें कोज है वो अननोन रहता है, इडियोपैथिक रहता है, कोज है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इडियोपैथिक बोलते हैं उसको। दूसरा जो रहता है उसमें ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया होता है, क्रोनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया होता है, जिसमें हमारी शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, वो आईजीई एंटीबॉडीज होती है, वो उसको अर्टिकेरिया प्रोड्यूस करती है। डेफिनेटली। तो ये आपने बताया कि अर्टिकेरिया 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट एंड क्रोनिक। और अभी जैसे आप अर्टिकेरिया को डिस्क्राइब कर रहे थे तो आपने बताया दैट इट इज एन एलर्जी ऑफ कोर्स एंड वेरी अनकंफर्टेबल कंडीशन टू हैव। और अर्टिकेरिया कैसा दिखाई देता है, आपने इस पर भी बातचीत करी। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि since this is a live session, if you have any questions, आप chat box में, comment box में questions डाल सकते हैं, and Dr. Imran Khan will directly address those questions. So Doctor, अर्टिकेरिया के बारे में आपने जैसे बताया acute and chronic 2 types के होते हैं। अर्टिकेरिया अपने आप में क्या एक serious disease है? Is it a serious condition? सीरियस डिजीज तो नहीं है, लेकिन कंप्लेन जो है पेशेंट को परेशान करने वाली बीमारी है। क्योंकि जब भी आर्टिरियल व्हील, अब जो मेन इसमें जो टर्म यूज करते हैं व्हील, पित्ती, साइंटिफिक टर्म है व्हील और हाइव्स, क्योंकि दाफड़ जिसको बोलते हैं मिलीमीटर टू सेंटीमीटर साइज का रेड इलेवेटेड स्वेलिंग होती है, रेड इलेवेटेड लीजन होता है जो रेडिश कलर का, यूजुअली मार्जिन जो होती है उसकी रेड होती है, सेंट्रल यूजुअली पेल होता है, और उसमें सीवियर ईचिंग होती है, इंटेंस ईचिंग होती है जो पेशेंट को बहुत ही परेशान करती है। इसलिए उसका ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना ही पड़ता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेन जो कंप्लेन है वो सीवियर ईचिंग की है, और कोई कंप्लेन इसमें यूजुअली नहीं होती है। कभी कभार उसमें माइल्ड फीवर हो सकता है, जब भी आपको अर्टिकेरिया होता है उस टाइम बॉडी टेम्परेचर यूजुअली स्लाइटली रेज होता है, माइल्ड फीवर रहता है। बाकी मेन जो कंप्लेन है वो सीवियर ईचिंग है, जो कि आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा उसके लिए। आपने क्रोनिक अर्टिकेरिया हाइव्स की जैसे बात करी, तो क्रोनिक अर्टिकेरिया इज व्हेन इट लास्ट्स मोर देन 6 वीक, राइट डॉक्टर? मोर देन 6 वीक। तो ये कैसे, लाइक डज इट लुक डिफरेंट फ्रॉम एक्यूट अर्टिकेरिया, और ये क्रोनिक अर्टिकेरिया हाउ कैन इट गो अवे? हम इससे कैसे मुक्ति पा सकते? ये क्रोनिक अर्टिकेरिया कुछ लोगों में 5 years, 10 years, मोर देन 10 years, 20 years, बहुत लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी चलता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रीटमेंट हो भी सकता है। ट्रीटमेंट पेशेंट इसमें अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 month मिनिमम आप रेगुलर ट्रीटमेंट अगर लेते हो, तो इसमें ये क्योरेबल है, क्योर हो सकता है, मोस्टली क्योर होता है। लेकिन पेशेंट यूजुअली इसमें जो है वो, कुछ पेशेंट्स में जो आर्टिकेरियल व्हील होते हैं, दाफड़ होते हैं, वो रोज होते हैं। कुछ पेशेंट वीक में 1 बार होते हैं, 2 बार होते हैं, 3 बार होते हैं, ट्वाइस वीकली, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ। तो लोग, ज्यादातर लोग करते हैं कि जब दाफड़ होते हैं तब एक टेबलेट वो लेते हैं, फिर वो दवाई छोड़ देते हैं, फिर जब दोबारा होता है तब लेते हैं। ऑन एंड ऑफ मेडिकेशन लेते हैं, रेगुलर मेडिकेशन नहीं लेते हैं। अगर वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल क्योर इन 6 month, यूजुअली क्योर हो जाते हैं। लेकिन रेगुलर ट्रीटमेंट, ऑन एंड ऑफ, बीच में आप बंद करते हो, फिर छोड़ते हो, फिर लेते हो, उससे नहीं होता है। रेगुलर ट्रीटमेंट लो, इसका इलाज संभव है, पूरी तरह से संभव है। So I think this is something which our viewers and patients should note very carefully, that the treatment has to be taken on a regular basis. बिना किसी discontinuation के treatment लिया जाना चाहिए for urticaria. डॉक्टर, अर्टिकेरिया का जैसे आपने बताया कि it is not a very serious disease, of course, but it is a very uncomfortable condition to have. अर्टिकेरिया के क्या कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट कोई पेशेंट नहीं कर पाया है? तो आर देयर एनी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस टू दैट? अर्टिकेरिया सिंगल एक होता है, सिर्फ अर्टिकेरिया होता है, ओनली अर्टिकेरिया। एक अर्टिकेरिया विथ एंजियोइडिमा। एंजियोइडिमा मीन्स होता है, अर्टिकेरिया होता है जो सिर्फ स्किन में होता है, अपर लेयर में होता है, स्किन स्वेलिंग होती है, रेड बम्स होते हैं, उसके ऊपर ईचिंग रहती है, सीवियर इंटेंस ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन रहता है।
लेकिन sometimes it is associated with angioedema. Angioedema is a deeper swelling in deeper layer, dermis or subcutis, and usually present around the lips, around the Okay. periorbital area, and sometimes it is in larynx and breathing. It can cause breathing problem. Then it is an emergency. If urticaria associated with angioedema of larynx, then it is an emergency condition. उस कंडीशन में एक इमरजेंसी कंडीशन आपको तुरंत इलाज लेने की, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत रहती है. ओनली अर्टिकेरिया विदाउट एंजियोइडिमा, देन यू कैन go for OPD basis. If you have problem in breathing, and then you have an emergency and you go to a emergency department and you have injectable drugs. Definitely, if it is threatening your breathing और इस तरीके से करके पर ये काफी कम परसेंटेज होता होगा that it becomes this level of life threatening. यस, होता बहुत कम है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में एंजियोइडिमा है अगर साथ में, और वो भी स्पेशली आप सांस की नली में, लेरिंग्स में लेरेंजियल इडिमा हो सकता है, उसमें सांस में इतनी दिक्कत हो सकती है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन में आपको, उसमें एक इमरजेंसी, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, इलाज लेना है. डेफिनेटली. चूंकि अभी हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं डॉक्टर, और 21st सेंचुरी में हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस, क्योंकि हर दूसरी कंडीशन इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस. सो इज अर्टिकेरिया वन ऑफ इट? क्या अर्टिकेरिया स्ट्रेस से भी हो सकता है? स्ट्रेस से होता है अर्टिकेरिया. तो ये कैसा दिखता है स्ट्रेस अर्टिकेरिया नॉर्मल अर्टिकेरिया से? डज इट लुक एनी डिफरेंट? यूजुअली अर्टिकेरिया किसी सब में से किसी भी चीज में हो सेम होता है. वो अर्टिकेरिया की साइज ऑफ जो लीजन है, जो अर्टिकेरियल जो व्हील बनता है, जो स्वेलिंग रहती है, वो मिलीमीटर्स में हो सकती है, सेंटीमीटर्स में हो सकती है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है. जो दाफड़ है उसकी साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उसमें वैसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है. यूजुअली अर्टिकेरिया के जो हम उसको पहचानते हैं, विद इन 24 आवर अर्टिकेरियल जो लीजन होता है, जो रेड प्लाक बनता है, रेड एडिमेटस जो लीजन होता है, वो विद इन 24 आवर डिसअपियर होता है. कुछ पेशेंट्स में विद इन मिनट्स में, कुछ विद इन आवर्स. विद इन 24 आवर वो लीजन है वहां से डिसअपियर होगा, दोबारा होगा तो दूसरी जगह पर वो दोबारा फिर अर्टिकेरियल व्हील बनेगा. एक जगह है वो विद इन 24 आवर वो डिसअपियर होगा ही अर्टिकेरिया में. अगर अर्टिकेरियल लीजन है, अर्टिकेरिया जो पेशेंट को अगर हुआ है, जो दाफड़ है उसको शरीर पे, अगर वो मोर देन 24 आवर परसिस्ट करता है, देन उसमें फिर अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है. कुछ हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, कुछ कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, अलग बीमारियां होती है, उनकी वजह से अगर होता है तो वो मोर देन 24 आवर परसिस्ट करता है. उसको हम अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस बोलते हैं. मतलब ये 24 आवर्स विंडो काफी विद इन 24 आवर डिसअपियर होगा वो अर्टिकेरियल व्हील. जो भी आपको अर्टिकेरियल लीजन बॉडी पे रेसेस हुए, वो रेसेस डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन रीअपियर होते हैं. वो डेली हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, वंस ए मंथ. जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स से अभी शेयर किया था कि आप, चूंकि लाइव सेशन है, तो अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड डॉक्टर इमरान खान विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोस. डॉक्टर, हमारे पास जितिन जॉनी जी की तरफ से एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी स्पेसिफिक फूड व्हिच कैन कॉज अर्टिकेरिया और इंक्रीज इट्स सेवेरिटी? क्या कुछ पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ हैं जिनकी वजह से अर्टिकेरिया और बढ़ सकता है, या उसका खतरा और ज्यादा फैल सकता है? स्पेशल फूड्स में जैसे एग है, जो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, शेल फिश है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं. जो ट्री नट्स है, वो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं. बाकी एनी फूड कैन कॉज अर्टिकेरिया. एनी फूड कैन कॉज, एनी फूड आइटम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एनीथिंग कैन कॉज अर्टिकेरिया. So we can't really be sure कि कोई एग्जैक्ट कॉज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. इसमें एग्जैक्ट कॉज आप, जैसे फूड आइटम्स में हम, जैसे अर्टिकेरिया हुआ है, तो उसमें हम खुद एक आइडिया लगा सकते हैं. हाँ, ये चीज खाने से, जिस दिन ये चीज खाते हैं उस दिन अर्टिकेरियल व्हील या दाफड़ हमारे हो रहे हैं. खुद पेशेंट है वो इसको ऑब्जर्व कर सकता है. 24 आवर्स विंडो काफी विद इन 24 आवर डिसअपियर होगा वो अर्टिकेरियल व्हील. जो भी आपको अर्टिकेरियल लीजन बॉडी पे रेसेस हुए, वो रेसेस डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन रीअपियर होते हैं. वो डेली हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, ट्वाइस ए वीक,
ट्वाइस ए मंथ, वंस ए मंथ। ऑफ कोर्स। जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स से अभी शेयर किया था कि आप चूंकि ये लाइव सेशन है तो अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड डॉक्टर इमरान खान विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोस। डॉक्टर, हमारे पास जितिन जॉनी जी की तरफ से एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी स्पेसिफिक फूड व्हिच कैन कॉज अर्टिकेरिया और इंक्रीज इट्स सेवेरिटी? क्या कुछ पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ हैं जिनकी वजह से अर्टिकेरिया और बढ़ सकता है या उसका खतरा और ज्यादा फैल सकता है? स्पेशल फूड्स में जैसे एग है, जो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, शेल फिश है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ट्री नट्स हैं, वो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। बाकी एनी फूड, एनी कैन कॉज अर्टिकेरिया, एनी फूड कैन कॉज, एनी फूड आइटम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एनीथिंग कैन कॉज अर्टिकेरिया। So we can't really be sure कि कोई exact particular type of एग्जैक्ट कॉज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते इसमें। एग्जैक्ट कॉज आप जैसे फूड आइटम्स में हम जैसे अर्टिकेरिया हुआ है तो उसमें हम खुद एक आइडिया लगा सकते हैं, हाँ ये चीज खाने से, जिस दिन ये चीज खाते हैं उस दिन अर्टिकेरियल व्हील या दाफड़ हमारे हो रहे हैं। खुद पेशेंट है वो इसको ऑब्जर्व कर सकता है। मतलब इसको इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जी। डॉक्टर, एक आई डोंट नो, प्लीज इसको आप, इज इट एन इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की हाइट्स या जो अर्टिकेरिया है वो नाइट टाइम में और कंडीशन वर्सन हो जाती है उसकी, इज इट ट्रू? नो, ऐसा नहीं है। अर्टिकेरिया कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, कभी भी हो सकता है। किसी भी ऐसा कुछ नहीं है कि नाइट में ही सीवियर होगा और मॉर्निंग में या डे टाइम में वो सीवियर नहीं होगा। जब भी आपको अर्टिकेरियल व्हील बनेंगे तो आपको इंटेंस इचिंग, बर्निंग, ये सब कंप्लेन रहेगी। तो इसमें नाइट टाइम या डे टाइम का डज इट गेट सीवियर ड्यूरिंग द नाइट टाइम? ऐसा नहीं है? नहीं है। कुछ पेशेंट्स में मॉर्निंग में होते हैं, कुछ में इवनिंग में होते हैं। अर्टिकेरिया किसी भी टाइम हो सकता है। तो सब में प्रेजेंटेशन सेम रहता है, इंटेंस इचिंग प्रेजेंटेशन होता है और कुछ प्रेजेंटेशन उसमें रहता नहीं है। डॉक्टर, अर्टिकेरिया से क्या, जैसे कि आपने बताया स्ट्रेस इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया भी होता है, ऑफ कोर्स फूड आइटम से भी अर्टिकेरिया होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के अर्टिकेरियास, क्या इससे थकान या फटीग बढ़ता है पेशेंट्स में? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सम पेशेंट्स कंप्लेन फटीग और वीकनेस। बाकी मोस्टली ऐसा कुछ होता नहीं है। मेन जो कंप्लेन रहता है वो इंटेंस इचिंग, बर्निंग और माइल्ड। सम पेशेंट्स आल्सो फील माइल्ड फीवर, बट यूजुअली फटीग और ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट इज जनरली मोर ऑफ ए स्किन कंडीशन देन। डॉक्टर प्रिया शर्मा एक और हमारे व्यूअर हैं, उनका एक क्वेश्चन है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से अर्टिकेरिया बढ़ने का खतरा रहता है? बढ़ने का खतरा तो जैसे स्ट्रेस में, यूजुअली स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई भी ऐसा जिसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया है, वो चीज जब तक आपके कांटेक्ट में नहीं आती तब तक आपको अर्टिकेरिया नहीं होगा। अर्टिकेरिया कोई पर्टिकुलर रीजन से हो रहा है, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है, कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो भी उसका है उसकी वजह से हो रहा है। जब वो एलर्जन आपके कांटेक्ट में आएगा तभी अर्टिकेरिया होगा। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कि आप, जब तक वो एलर्जन आपके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक कोई अर्टिकेरिया नहीं होगा। आपने जैसे फूड आइटम्स की बात करी कि देयर आर नॉट एनी पर्टिकुलर फूड आइटम्स, वो कैसे भी हो जाता है, इसके बावजूद इज देयर एनी डाइटरी प्रिकॉशन या डूज एंड डोंट्स की नहीं ये खाना है, ये नहीं खाना है अर्टिकेरिया के पेशेंट्स के लिए आफ्टर दे हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड अर्टिकेरिया? इज देयर एनी डाइटरी प्रिकॉशन फॉर दोस पीपल? ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है कि आप ये चीज छोड़े, लेकिन फिर भी आप जैसे एग अवॉइड करें, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये अवॉइड करें, नट्स है उनको अवॉइड करें। बिल्कुल। तो आप हर पेशेंट को अलग अलग रीजन रहता है। अब जिस पेशेंट को आप मिल्क से एलर्जी नहीं है उसको मिल्क बंद करने में कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। जिसको एग से एलर्जी नहीं है उसको एग आप एक कॉमन है। अब आप टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हो, आप सेल्फ मॉनिटरिंग करके, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप खुद पता कर सकते हो, हाँ ये चीज है मुझे वो एलर्जी कर रही है। फिर दूसरा आप टेस्ट होता है, इसमें पैच टेस्ट भी होता है, इसमें एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं जो हमारे एलर्जी कर रही है। आप वो चीजें बंद करके देखते हो तो कुछ पेशेंट्स में बेनिफिट अच्छा रहता है,
जिस चीज से आपके ब्लड टेस्ट में या पैच पिन प्रिक टेस्ट होता है उसमें अगर आपको वो एलर्जन है और वो आप उससे कांटेक्ट छोड़ते हो, आपको अगर फूड आइटम है उसको खाना छोड़ते हो या कोई मेडिकेशन है उसको छोड़ देते हो तो आपको 100% वो क्योर हो जाता तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपने बताया किस तरीके से जो एलर्जन है, बिकॉज इट इज एन एलर्जी एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर वो एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो उस फूड आइटम से हमें ऑफ कोर्स एक दूरी बनाना इट इज क्वाइट नेसेसरी। डॉक्टर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी व्यूअर्स के मन में भी होगा, ऑफ कोर्स, इज अर्टिकेरिया कंटेजियस? क्या अर्टिकेरिया कंटेजियस है? नहीं नहीं, कॉन्टेजियस नहीं है अर्टिकेरिया, बिल्कुल भी कॉन्टेजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्टिकेरिया छूने से या पास साथ में रहने से या घर में साथ में रहने से किसी को हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। So it is not. So if you have a patient of urticaria in your home, you won't contract it by nursing for them. आप उनका ख्याल रख सकते हैं विदाउट फेयरिंग द कि आपको कि अर्टिकेरिया कंटेजियस है। डॉक्टर, पिछले 2 सालों से जैसा कि सर्वज्ञात है ये कि हम एक पैंडेमिक से फाइट कर रहे हैं, एंड अभी तो भारत में तो काफी इसके केसेस कम हो गए हैं, पर और दूसरे देशों में अभी भी कोविड केसेस आर ऑन द राइज। तो कोविड से जुड़ा एक काफी क्या हम देख सकते हैं कि कैन कोविड कॉज हाइव्स ऑन फेस? क्या कोविड से फेस पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे हाइव्स हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोविड वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है वो acute urticaria usually is infection से more common with infections Okay. and it even vaccination से भी कुछ पेशेंट्स में urticaria हो सकता है। even anything in the world can cause urticaria, Of course. even infection, drugs and food item, anything can cause urticaria. हमारी व्यूअर हैं अजीत सिंह जी। इनका क्वेश्चन है कि अर्टिकेरिया क्या एक जानलेवा बीमारी है और ये कितना घातक है? अजीत सिंह जी, हम इस पर हम आपका डाउट दूर कर देते हैं कि अर्टिकेरिया जानलेवा बीमारी नहीं है, जैसे कि डॉक्टर इमरान खान ने भी बताया। लेकिन ये कितना घातक है डॉक्टर? ऑफ कोर्स इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, इफ एज यू मेंशन दैट अगर वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, सो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, पर ये कितना घातक और हो सकता है? कैन इट बी फेटल अर्टिकेरिया? नहीं है और घातक इस कुछ नहीं हो सकता है। वैसे सम पेशेंट्स जिनमें कि एंजियोइडीमा रहता है, साथ में एंजियोइडीमा होता है स्पेशली इन लेरिंजियल पार्ट, सांस की नली में एंजियोइडीमा अगर होता है, आपके स्वेलिंग होती है तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अर्टिकेरिया है, acute urticaria is also a emergency condition, but it can easily manage at OPD clinic. But if you have an angioedema and you have breathing problem, then you can go for emergency. Of course, and you should go for emergency services अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग वो लगता है। डॉक्टर, अर्टिकेरिया जैसी कंडीशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर देयर इज नॉट मच अवेयरनेस स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो कौन से लैब टेस्ट हैं जो अगर इफ यू डाउट दैट यू हैव अर्टिकेरिया, वो कौन से लैब टेस्ट हैं जिनकी जो करवाने की जरूरत है और क्यों? Usually patient if have urticaria, then first we do CBC, ESR and CRP for infection. Okay. कोई भी पेशेंट अगर उसमें इन्फेक्शन है तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें TLC, WBC वगैरह जो इन्फेक्शन को देखने के लिए बढ़ा हुआ है वो देख सकते हैं। CRP है, ESR है, वो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए होता है फर्स्ट। देन कुछ पेशेंट्स में होते हैं जैसे थायराइड प्रॉब्लम है, अगर किसी में क्रोनिक अर्टिकेरिया है, मोर देन 6 वीक हो चुके हैं, तो उसमें हम थायराइड प्रोफाइल, T3, T4, TSH, थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाते हैं। और फिर अगर आप और अपर लेवल पे, तो पेशेंट अगर क्रोनिक अर्टिकेरिया मोर देन 6 वीक और मोर देन मंथ्स और ईयर्स अगर पेशेंट्स को हो चुका है, तो उसको फिर एलर्जन टेस्ट होता है। एलर्जन टेस्ट में पैच टेस्ट भी होता है और एक पिन प्रिक टेस्ट होता है, उससे कर सकते हैं। और एक ब्लड से भी हम एलर्जी टेस्ट होता है, कंप्लीट एलर्जी प्रोफाइल होता है, उससे भी ये टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें जो भी सस्पेक्ट फूड, ड्रग्स और इनहेलेशन और प्लांट्स जो भी आता है जो एलर्जन जिसे उस टेस्ट में, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
तो ये जो आपने टेस्ट बताए, दीज आर नेसेसरी सो दैट पेशेंट्स को भी इसकी इंफॉर्मेशन रहे, सो इफ दे सस्पेक्ट दैट दे हैव गॉट अर्टिकेरिया, दे कैन immediately go for such lab test under the consultation of their dermatologist. Doctor, there is a question from one of our viewers. ऐसे कौन से clinical treatments हैं जिससे हम ले सकते हैं और वो हमें नुकसान ना पहुंचाए for the treatment of urticaria? अर्टिकेरिया, यूजुअली अर्टिकेरिया जो होता है वो स्किन में हमारे मास्ट सेल्स होते हैं। वो कोई भी एलर्जन जब बॉडी कांटेक्ट में आता है, हम खाने में आता है, इनहेलेशन में आता है, कोई भी अगर, तो उससे एंटीबॉडी बनता है। वो एंटीबॉडी मास्ट सेल पे जाके अटैच होता है एंटीजन से। वो मास्ट सेल जो होता है ना, वो उससे एक हिस्टामिन निकलता है। वो हिस्टामिन से फिर ब्लड वेसल्स होती है, हमारी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, वो डायलेट होके उसमें फ्लूइड होता है, वो बाहर निकलता है। उससे ये यहाँ पर स्वेलिंग आती है। वो जो ये व्हील बनता है, जो अर्टिकेरियल जो व्हील बनता है, जो हाइव्स बनते हैं, जो लीजर रेड कलर का एलिवेटेड जो स्वेलिंग होती है, वो बनती है। अब हिस्टामिन है, तो हमारा जो पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इसमें, वो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं। एंटी हिस्टामिन हम देते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटी हिस्टामिन है। यूजुअल पहले फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन थे, अभी सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन हम फर्स्ट लाइन के रूप में यूज करते हैं। सेकंड जनरेशन जो होते हैं नॉन सीडेटिंग होते हैं। फर्स्ट जनरेशन होते हैं वो सीडेटिव होते हैं। थोड़ा पेशेंट को डे टाइम में कंप्लेन रहता है, फिर उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है ना, वो उससे इफेक्ट होती है। तो सेकंड लाइन एंटी हिस्टामिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें यूजुअली हम फर्स्ट एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं सेकंड जनरेशन फॉर 1 or 2 वीक। अब इफ they cannot respond, they don't respond, then we go for updosing. We can go for 4 times for the base dose. हम उस डोज को इंक्रीज कर सकते हैं 4 टाइम्स, 4 गुना तक वो डोज दे सकते हैं। अगर उसके बाद में भी अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तब हम उसमें कुछ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म यूज नहीं करते। शॉर्ट टर्म के लिए हम ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो दे सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन्स होती है, एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो साइक्लोस्पोरिन आती है। एक ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी होती है, ओमालीजुमाब, जो न्यूअर ड्रग है, नई दवाई है। अगर किसी से भी रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो ओमालीजुमाब वो भी उसमें यूज करते हैं। लेकिन यूजुअली फर्स्ट लाइन जो रहता है नॉन सीडेटिंग सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक हम यूज करते हैं। यूजुअली उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। अभी न्यूअर मॉलिक्यूल है बिलास्टीन जैसे मॉलिक्यूल आता है, जो उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो, और इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी रहती है, तो आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। साइड इफेक्ट आप इवन रीनल पेशेंट है, रीनल फेलियर है, लीवर फेलियर है, कोई भी पेशेंट जिसको लीवर और रीनल किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, वो भी यूज कर सकता है, उसमें भी दे सकते हैं। और बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट है, सीडेशन बिल्कुल नहीं होता है, पेशेंट इजीली उसको ले सकता है और बहुत अच्छा उससे कंट्रोल होता है। तो ये आपने बताया कि किस तरह के उनके ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम अर्टिकेरिया को डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली क्योर करते हैं। अर्टिकेरिया की बात चल रही है तो हमारी एक व्यूअर है सोनिया सिंह जी, उनका एक क्वेश्चन है कि क्या अर्टिकेरिया मोस्टली विमेन्स को होता है? इज इट मोर प्रोमिनेंट इन फीमेल पेशेंट्स? It is more common in female, usually 2:1 ratio, 2 times more in female. तो ये नोट कर दें कि क्या इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस डॉक्टर? नो रीजन तो नहीं है कोई स्पेशल ऐसा कुछ, लेकिन फीमेल्स में यूजुअली मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल। डॉक्टर, अक्सर जैसे कि देखा जाता है इस अभी जब हमने अर्टिकेरिया पे बातचीत शुरू की तो सबसे पहली एडवाइजरी यही थी कि सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं, बिकॉज यू डू नीड अ स्पेशलिस्ट हु हैज एन एक्सपर्टीज इन दिस, कि वो सही तरीके से क्योर करके ट्रीट कर सकें। इसके बावजूद हमारे एक व्यूअर हैं दीपक सक्सेना जी, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो हम अर्टिकेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं टू अ सेफ डिग्री, सेफ्टी के साथ। घरेलू उपाय, सबसे पहले आपको अगर अर्टिकेरिया है तो आप सबसे पहले तो डे बाय डे एक एक चीज को आप छोड़ के देखिए। अगर आपको रेगुलर डेली अर्टिकेरिया होता है, डेली एलर्जी हो रही है, रोज एलर्जी हो रही है, रोज दाफड़ हो रहे हैं, तो आप एक एक चीज को आपने कुछ टाइम के आपने मिल्क प्रोडक्ट है वो बंद करके देखा है, कोई उससे कुछ नहीं है, आप
फिर आपने वेजिटेबल्स को, एक एक वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो जो यूज करते हैं डेली, उनको एक एक चीज को आप बंद करके देखते हैं। अगर उसमें आपको आइडिया लगता है या पता लगता है हाँ ये चीज है जो मैं लेता हूँ तो इससे मुझे अर्टिकेरिया हो रहा है और बाकी चीज से नहीं हो रहा है, तो वो एक तो ये पहले पेशेंट को खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये एक फायदेमंद है। दूसरा, आप रेगुलर ये स्क्रेचिंग इच स्क्रेच साइकिल होता है। आप स्क्रेच इचिंग होगी, फिर व्हील बनेगा, फिर आप स्क्रेच करोगे तो व्हील उस, तो इसके लिए आप जैसे इमोलिएंट मॉइस्चराइजर वगैरह है वो रेगुलर जैसे बॉडी पे अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, स्किन को ड्राई होने से बचाओ, तो स्क्रेच इचिंग कम होगी, स्क्रेचिंग कम होगी, अर्टिकेरियल व्हील कम बनेगी। ये है। बाकी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये भी, इनका भी रोल रहता है अर्टिकेरिया में। कुछ पेशेंट्स में स्ट्रेस है, एंजाइटी है। अब डेली लाइफ अर्टिकेरिया अक्यूट क्रोनिक हो गया, उसके अलावा भी अर्टिकेरिया के बहुत सारे टाइप्स और भी है। जैसे एक अर्टिकेरिया होता है ये डर्माग्राफिज्म होता है, जिसमें हमारे जैसे आप बॉडी पे जैसे स्क्रैच करोगे वैसा का वैसा व्हील बनेगा। आप लीनियर स्क्रैच करोगे, लाइन बनेगी। आप नाम लिखोगे, डॉक्टर इमरान लिखोगे तो डॉक्टर इमरान उस पर लिखा हुआ व्हील बन जाएगा, पूरा वो स्वेलिंग ऐसे प्रिंट होगी। इसके अलावा जैसे एक्वाजेनिक होता है अर्टिकेरिया, कुछ लोगों के वाटर कॉन्टेक्ट से अर्टिकेरिया होता है। प्रेशर अर्टिकेरिया होता है, आपने कोई एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत जगह कुछ टाइम के लिए प्रेशर रहता है, वहां पर अर्टिकेरियल व्हील बन सकता है। कोलिनर्जिक एक कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया होता है जो यूजुअली स्वेटिंग और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद में बॉडी में स्वेटिंग होती है और उसके बाद में उनमें छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे साइज के अर्टिकेरियल लीजन बनते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट में स्ट्रेस की वजह से, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब गर्म पानी से नहाते हैं और नहाने के बाद, स्पेशली विंटर्स में ये कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया सर्दियों में, विंटर में ज्यादा होता है, विंटर में ज्यादा रहता है। आप पेशेंट आते हैं कंप्लेन लेके, हम नहाने के तुरंत बाद होते हैं, 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं। कंप्लेन इतनी है कि हाँ वो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, लेकिन वो उस टाइम बहुत सीवियर रीचिंग होती है और ये डेली कंप्लेन रहती है। कुछ पेशेंट ठीक है, वो कोई भी हैवी वर्क करते हैं उसके बाद या एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद उनको वही अर्टिकेरियल लीजन बनते हैं। सन एक्सपोजर के बाद, तो आपको सन एक्सपोजर है वो, अगर उससे अर्टिकेरिया हो रहा है तो आप सन एक्सपोजर को अवॉइड करना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज है उससे अगर हो रहा है, वो थोड़ा सा आप जो जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। सन एक्सपोजर से होता है, कुछ लोग जैसे ही थोड़ी देर धूप में रहते हैं उसके बाद मुंह में वही अर्टिकेरियल लीजन डेवलप हो जाते हैं स्वेटिंग के बाद। बिल्कुल। तो ये घरेलू उपाय में सबसे पहले तो यही है कि हमें ट्रायल एंड एरर के मेथड से ये देखना है कि अर्टिकेरिया हमें क्यों ये कंडीशन हम क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्या कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है? एक-एक करके एक-एक एलिमेंट आपकी लाइफ से रिड्यूस कर करके हमें ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इमरान खान। डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है हमारे व्यूअर की तरफ से कि आप अर्टिकेरिया पेशेंट्स के लिए क्या डूज एंड डोंट्स सजेस्ट करते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जैसा कि अभी हमारे साथ शेयर किया गया? इसमें पहला तो डूज तो यही है कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाँ। ट्रीटमेंट है वो, ये क्योरेबल है। आप अगर उसको ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो आपको अक्यूट है वो धीरे धीरे क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है। अभी आपका वो इनिशियल स्टेज पे आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो क्योर हो जाएगा। अगर आप मोर देन 6 वीक हो गया, क्रोनिक अर्टिकेरिया में कन्वर्ट हो गया वो, तो फिर आपको उसमें ट्रीटमेंट में लंबा ट्रीटमेंट चलेगा वो। दूसरा, अब आपको अवॉइड है तो अवॉइड आपके लिए सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टिगेशन जो होंगे वो करवा के, फिर उसमें आपको जो जो चीजें ऐसा लगता है हाँ ये चीजें हैं या एलर्जन, इस चीज से एलर्जी हो रही है, वो चीजें आपको बंद करनी है। फिर बॉडी पे आपको जैसे स्पेशली जैसे सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है। मॉइस्चराइजर है विंटर्स में स्पेशली, आप रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। स्पाइसी फूड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सबको अवॉइड करना है। बिल्कुल। तो हमें अपना हमारी बॉडी किस तरीके से, स्पेशली हमारी स्किन किस तरीके से इन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। इज़न्ट दैट राइट डॉक्टर? यस। ओके। डॉक्टर, एक और हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि अगर आपको स्किन पर रेड पैचेस हैं किसी भी बॉडी पार्ट पर, इफ यू हैव रेड पैचेस, इज इट अर्टिकेरिया?
हर रेड अर्टिकेरिया लीजन है वो अर्टिकेरिया नहीं होता है, उसमें अर्टिकेरिया को भी हमें अब रूल आउट करना पड़ता है। अर्टिकेरिया कोई फंगल इन्फेक्शन है वो भी रेड लीजन हो सकता है। रेड स्किन में मोस्ट ऑफ द जो डिजीज है उनमें रेड एलिवेटेड लीजन होते हैं, रेड कलर के लीजन रहते हैं। तो अर्टिकेरिया में पहला तो यही होता है कि पेशेंट जो होगा विद इन 24 आवर अर्टिकेरियल लीजन डिसअपियर होते हैं। एक घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, विद इन 24 आवर जो अर्टिकेरियल जो व्हील होता है वो डिसअपियर हो जाता है। देन रीअपियर अगेन आफ्टर 1 डे और 2 डे। बट एक बार के लिए वो डिसअपियर होता है, जहां पर भी हुआ है एक जगह डिसअपियर होगा, दूसरी जगह फिर रीअपियर होगा। तो ये कांस्टेंट जो एक इंस्पेक्शन है आपको करना कि क्या ये रीअपियर हो रहा है, यूजुअली फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट हिस्ट्री इज सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ अर्टिकेरिया। पेशेंट आते हैं तो यही रहता है कि हाँ ठीक है, हमारे ये लाल लाल दाने होते हैं या लाल स्वेलिंग आती है और वो थोड़ी देर रहती है, इचिंग चलती है, फिर वो गायब हो जाते हैं। यूजुअली पेशेंट जब अर्टिकेरिया का पेशेंट हमारे पास आता है तब उसके मोस्ट ऑफ द पेशेंट अर्टिकेरियल व्हील होता ही नहीं है, उस टाइम नहीं होता उसके। वो कंप्लेन लेके आता है कल हुआ था, परसों हुआ था, रोज होता है, लेकिन जब वो ओपीडी में आएगा, क्लिनिक पे आएगा पेशेंट, तब उसके अर्टिकेरियल लीजन यूजुअली नहीं होते हैं। वो सिर्फ उसकी हिस्ट्री से और आप उसी से आप डायग्नोसिस कर लेते हो कि हाँ अर्टिकेरिया है पेशेंट को। अगर उसको कोई लीजन प्रेजेंट है तो वो हम उसको देख के डायग्नोस कर सकते हैं। अर्टिकेरियल लीजन यूजुअली आप उसको प्रेस करते हैं तो वो ब्लैंच होता है, डिसअपियर हो जाता है। उसका मार्जिन जो रहता है थोड़ा सा एरिथमेटस रेडिस होता है, सेंटर में थोड़ा पेल होता है, लेकिन फिर भी वो रेड मार्जिन डिसअपियर हो जाती है अगर आप उसको प्रेस करोगे। जबकि अगर कोई स्किन लीजन है अदर कोई डिजीज का, वो डिसअपियर नहीं होता है, वो उसका रेड जो मार्जिन है, जो रेड कलर है, वो ब्लैंच नहीं होता है। वो आप उसको प्रेस करते हो तो ब्लैंच नहीं होता है। और पेशेंट सेल्फ हिस्ट्री देता है कि विद इन 2 घंटे रहते हैं, 3 घंटे रहते हैं और वो चले जाते हैं वापस, फिर रोज होता है रोज है, लेकिन डिसअपियर होता है वो। फिजिकल एग्जामिनेशन इज द की बेसिकली, आपका खुद का फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन इज द की। डॉक्टर, हमारी एक और व्यूअर हैं गिन्नी शर्मा जी, इनका क्वेश्चन है कि क्या अर्टिकेरिया किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है? अर्टिकेरिया किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, कोई एज ग्रुप नहीं था। यूजुअली जो 20 to 40 ईयर एज में इट इज मोर कॉमन, बट इट कैन अफेक्ट एनीवन एट एनी एज, at any age for any gender। हालांकि जैसे कि अभी हमारी बातचीत हुई कि it is more prominent in female patients, more common female patient। हाँ, पर of course अर्टिकेरिया से कोई भी एज ग्रुप का पेशेंट, कोई भी जेंडर का पेशेंट, they are all at the risk। yes, so I hope Dr. Imran Khan was able to positively respond to all the questions that our viewers had। डॉक्टर इमरान खान, आज की इस कॉन्वर्सेशन में, आज की इस इंटरेक्शन में आपने अर्टिकेरिया या हाइट्स किस टाइप की होती हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड विद सच ग्रेट कैडर आपने हमसे शेयर की। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल व्यूअर्स। Thank you so much, Dr. Imran, for your valuable time. It has been very informative session for our viewers, and I'm sure कि हम सभी इस information को use करके अर्टिकेरिया से खुद को और हमारे परिवारजनों को, near and dear ones को हम बचा पाएंगे। और अगर हम अर्टिकेरिया के symptoms देख भी रहे हैं तो right now after such an informative session with Dr. Imran Khan, we know कि self medication is not the key, self examination is the key। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हमें अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के। सो डॉक्टर इमरान खान, इट वाज रियली ग्रेट टू हियर यू एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर सच इंफॉर्मेटिव सेशंस इन द कमिंग टाइम्स विथ यू फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, थैंक यू। And we thank you, viewers, everybody who watched the session, for your participation and for your questions। सभी लोगों की query आपके question से बहुत positively solve हुई है। To get latest updates on how to keep your skin healthy, you can like and follow our Facebook page, All About Skin Allergy, and don't forget that we are also available on YouTube, Twitter, and Instagram। Thank you so much. I hope you all have a very nice day ahead।